हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पेज नंबर 46 तक क्वेश्चंस किए थे और आपको होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। एडिशंस के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, पेज नंबर 46 तक करने के लिए दिए थे। ये वाला क्वेश्चन था पेज नंबर 45 का, है ना। और इसके बाद आपको पेज नंबर 46 पर भी इसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले। आप इसे देख लीजिए अच्छे से, है ना, और इसको वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा। और साथ ही आपको ये क्वेश्चंस जो अपनी नोटबुक में कर लिए थे, करने थे, वो आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए गुड। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 47 पर हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्टिकल एडिशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग ओवर। मतलब हमें यहाँ पर 3 डिजिट नंबर का एडिशन करना है जिसमें कैरी नहीं आएगा। Let us now add 3 digit numbers vertically. We know that 3 digit addition means addition by hundreds, tens and ones. For example, let us add 323 and 462. Step number 1. Arrange the addends in the hundreds, tens and one columns. See, this is ones, tens and hundred column, and all the addends like 323 and 462. These two addends have to be placed in the ones, tens and hundred columns, and just you have to add this and you will get the result as a sum. Okay, so add the ones, that is 3 ones and 2 ones, 3 ones and 2 ones, you will get the answer 5. Write 5 under the ones column. Now step number 3, add the tens, that is 2 and 6, and you will get the result, that is 8. So write 8 under the tens column. Now step number 4, add the hundreds, that is 300s plus 400s, that is equal to 700s. Okay, so write 7 under the hundreds columns. Students, you will get the result, that is the 323 plus 462, you will get 785. चलिए, आपको 3 डिजिट नंबर का एडिशन इससे समझ में आ गया होगा जिसमें यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा है। नाउ हम देखते हैं वर्टिकल एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग ओवर, जिसमें कैरी भी जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, let us add 379 and 482. So arrange the addends in the hundreds, tens and ones columns. See, this is 379 and 482. आपने इन दोनों को अरेंज कर लिया है वंस, टेंस और हंड्रेड्स कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आप वंस से वंस को ऐड करेंगे, यानी 9 और 2 को आपने ऐड किया, यू विल गेट द आंसर 11. सो 11 का 1 हियर, राइट 1 इन द वंस कॉलम and forward 1 carry over to the tens columns. So now you will add 1 plus 7 plus 8, okay, in the tens columns. So you will get the result 16. So put 6 in the tens column and carry forward 1 to the hundred columns. Then add 1 plus 3 plus 4. You will get the result 8. Okay. So students, when you add all these two numbers, you will get the result 861. Remember, always add ones to ones, tens to tens, and hundreds to hundreds. Now students, please turn the page at page number 48. See, this is a small exercise. You have to add 3 digits number vertically. Okay, so 4 plus 0, you will get the answer 4. 2 plus 4, you will get 6. 1 plus 1, 2. 2 plus 5, 7. 6 plus 0, 6. 3 plus 1, 4. 3 plus 6, 9. 5 plus 3, 8. 4 plus 2, 6. Now arrange the addends in the columns and add. First of all, you have to arrange all these numbers in this way: 620 and 374. Okay, and then you will add it: 4 plus 0, 4, 7 plus 2, 9, and 6 plus 3, 9. Again 561 and 316. Okay, now add these: 6 plus 1, that is 7, 6 plus 1, 7, 5 plus 3, 8.
Similarly, 891 and 108. So you will get the answer 8199 plus 0 9 819. Okay students, I hope you will understand these questions. Now do these addition sums in your notebook. आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा. Now let us understand addition story. We have many words and phrases which denote that addition should take place in the given story. Some of these clues, words and phrases are given below. In all, both, sum of, total, altogether, together, on the whole, plus, additional और increase by. अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखते हैं तो आपको उन्हें अल्टीमेटली ऐड करना है, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ गार्डनर प्लांट्स 230 रोज प्लांट्स एंड 108 सनफ्लावर प्लांट्स इन अ गार्डन. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. Number of rose plants in the garden 230. Number of sunflower plants in the garden 108. So you will add these two numbers as 8 plus 0 8, 3 plus 0 3, 2 plus 1 3. So total number of plants in the gardens are 338. Okay students, now this is again a revision time. यहाँ ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. A cow produced 330 liters of milk and a goat produced 216 liters of milk in a week. Find the total milk produced by both of them during the week. मतलब क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक गाय है जो 330 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है और जो गॉट है वो 216 लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है एक वीक में, ठीक है. सो आपको ये बताना है कि दोनों मिलाकर के कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है पूरे वीक में. सो लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द काउ कितना प्रोड्यूस कर रही है 330 एंड लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द गॉट इज 216. सो add these numbers and you will get the total milk produced. Okay, so 6 plus 0 you will get 6, 3 plus 1 4 and 3 plus 2 5. Okay students, so the amount of milk produced by both the animals is 330 plus 216, you will get 546 liter. Okay students, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गुनु हैज 341 स्टैम्प्स एंड दीपू हैज 437 स्टैम्प्स. हाउ मैनी स्टैम्प्स डू दे हैव ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मीन्स यहाँ पर हमें ओवरऑल टोटल स्टैम्प्स को प्लस करना है, ठीक है. सी नंबर ऑफ स्टैम्प्स गुनु हैज, गुनु के पास कितने थे 341, तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे 341. ओके, एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 1s कॉलम में आएगा, 4 10s कॉलम में आएगा एंड 3 100 कॉलम में आएगा इस केस में, ठीक है. जैसे अब सेकंड है 437, तो 7 आना चाहिए 1s कॉलम में, 3 आना चाहिए 10s कॉलम में और 4 आना चाहिए 100s कॉलम में. सो नंबर ऑफ स्टैम्प्स दीपू हैज 437. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स यहाँ लिखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स दे हैव. इनको आपको सम करना है. 7 plus 1 8, 4 plus 3 7 and 3 plus 4 again 7. So answer is they have 341 plus 437 is equal to 778 stamps altogether.
स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलिए पेज नंबर 50 निकालते हैं। सी again there is a question. A balloon seller sold 550 balloons on one day and 340 balloons on the next day, है ना। एक बलून सेलर है जो 550 बलून्स एक दिन में सेल करता है और 340 बलून जो है वो नेक्स्ट डे पर सेल करता है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बलून सोल्ड बाय हिम इन 2 days। उसने 2 दिन में कितने बलून सेल किए ये अपने को बताना है। सो नंबर ऑफ बलून सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे में कितने थे 550 एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैंक है। सो नंबर of balloons sold on the next day उसने कितने किए हैं 340। ओके सो टोटल नंबर ऑफ balloons sold in both the days, that is 0 plus 0 0, 5 plus 4 9 and 5 plus 3 8। so total the balloon seller sold 550 plus 340 is equal to 890 balloons। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Namita has 365 page English textbook and 232 page English workbook to read for the exam. How many pages does she have to read in all? ठीक है, नमिता के पास एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर 365 पेजेस हैं और एक इंग्लिश वर्क बुक है जिसके अंदर 232 पेजेस हैं जो उसे एग्जाम के लिए पढ़ना है ना। हाउ मैनी पेजेस डज शी हैव टू रीड इन ऑल, उसे कितने पेजेस टोटल इसके अंदर पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पेजेस इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक में कितने हैं 365 है ना। सो सेकंड इंग्लिश वर्क बुक में है, सो आप लिखेंगे number of pages in English workbook is equal to 232। ओके, अब अपने को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने उसने रीड करने हैं नमिता ने। सो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 5 plus 2 7, 6 plus 3 9 and 3 plus 2 5। okay students, so the total number of pages to read is 365 plus 232 and is equal to 597। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस करके समझ में आया होगा कि स्टोरी वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर नीचे कुछ होमवर्क जो कि आपको कंप्लीट करके रखना है अपनी नोटबुक में। डू द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। A flight can accommodate 396 passengers in the economy class and 207 passengers in the business class. In total, how many passengers can the flight accommodate? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फ्लाइट है जिसमें 396 पैसेंजर किस क्लास में चलते हैं इकोनॉमी क्लास में चलते हैं और 207 पैसेंजर्स का में बिजनेस क्लास में चलते हैं। ठीक है, ट्रैवल करते हैं। तो ओवरऑल टोटल निकालना है कि हाउ मैनी पैसेंजर्स उस फ्लाइट के अंदर हैं, मतलब 396 और 207 को इसी तरीके से आंसर करके लिखना है प्लस करके। ठीक है, नाउ अ फ्रूट सेलर सोल्ड 245 एप्पल्स ऑन डे 1, ही सोल्ड 379 एप्पल्स ऑन डे 2। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही सेल ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन जैसा है, बलून जैसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मूवी हॉल A has 462 seats, movie hall B has 509 seats. How many seats are there in a movie hall A and movie hall B together? एक मूवी हॉल है A है जिसमें 462 सीट है, एक B है जिसमें 509 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये अपने को बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर वर 435 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल
267 more students joined the school. Now how many students does the school have in all? मतलब पहले से एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे? 435 थे, और 267 और मोर स्टूडेंट्स जो हैं उस स्कूल में ज्वाइन होते हैं। तो अपने को बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब हम हमारे नए वीडियो में पेज नंबर 51 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।